Hello friends, once again welcome. Now today we will solve example number 5 of working capital. The example is in front of your screen. If you read the example, you will find that there are mainly two new things in this example. Out of that first one, which is given in the first two lines itself, from the following information, estimate the requirement of working capital of a manufacturing organization on cash cost basis. Underline it. Cash cost basis. Now we are asked to calculate the entire estimation of requirement of working capital on cash cost. इसका मतलब ये होता है कि जो एक्चुअली कॉस्ट जो हम कैश में पे करते हैं उसी को कंसिडर करना है, कि जो नॉन कैश आइटम्स है कॉस्ट के उसको कंसिडर नहीं करना है. For example, in earlier examples, we have calculated WIP on cost of production basis, or finished goods, WIP on works cost basis, or finished goods on cost of production basis, और debtors on total cost basis. So हमने ये भी सब कॉस्ट देख ली, या तो वर्क्स कॉस्ट होगी, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, या टोटल कॉस्ट होगी. अभी इसमें हमने क्या किया कि हमने सब कॉस्ट को कंसिडर किया, लेकिन अभी हो सकता है कि इन दीज टोटल कॉस्ट some of the cost may be non-cash one. Say for example depreciation. Suppose मैंने works cost निकाल लिया. Now works cost कैसे निकलती है? Prime cost plus factory overheads. Now under factory overheads, one of the item can be there, that is a depreciation on machinery. Now depreciation on machinery will be one of the item of overheads, factory overhead. So total amount of factory overheads will increase, और उतनी total amount हम cost में consider करते हैं. तो इसकी वजह से जब भी हम वर्क्स कॉस्ट निकालते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं या टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो इसमें कुछ नॉन कैश कॉस्ट हो सकती है. एज पर द अकाउंटिंग वी हैव टू कंसीडर दैट कॉस्ट, बट एक्चुअली इट इज अ नॉन कैश कॉस्ट. एग्जांपल इज अ डेप्रिसिएशन. सो व्हेन वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, वी हैव टू एक्सक्लूड सच टाइप ऑफ नॉन कैश कॉस्ट. अभी इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, नीचे इंफॉर्मेशन दिया है, रॉ मटेरियल दिया है ₹40 पर यूनिट, लेबर दिए ₹10 पर यूनिट, और ये जो दिए यहाँ पर ओवरहेड्स दिए ₹30 पर यूनिट यहाँ पर लगा है. बट इट इज मेंशन इन द एग्जाम्पल दैट ब्रैकेट दिस 30 इंक्लूड्स ₹10 एज अ डेप्रिसिएशन. सो ये जो टोटल ₹30 है which is overheads per unit, which includes depreciation of ₹10 per unit. So depreciation ₹10 which is a non-cash cost. अगर सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹30 है टोटल, बट आउट ऑफ दिस 30 ₹10 इज अ डेप्रिसिएशन. सो इसका मतलब मुझे एक्चुअल कैश कितनी लगती है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो दैट विल बी द 20. सो व्हाट वी विल डू, आउट ऑफ दिस 30 we will exclude this 10 and we will consider manufacturing cost as overheads, manufacturing overheads of ₹20. So it means raw material 40, labor 10 and overheads 20. So our total cost will be 70 instead of 80. जो example में दिया है, raw material 10, 14, labor 10 and overheads given as a 30. But instead of 30, now we will consider 20. So this is the one new thing given in the example. अभी हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, say for example WIP के लिए हमको कैलकुलेशन क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. बट यहाँ पर अगेन बाइफर्केशन ऑफ ओवरहेड्स इज नॉट अवेलेबल. सो टोटल ओवरहेड्स वी विल हैव टू कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग WIP, फिनिश गुड्स एज वेल एज डेटर्स. सो WIP के लिए हम कॉस्ट कंसीडर करेंगे टोटल 70, फिनिश गुड्स के लिए भी कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी 70, और डेटर्स के लिए भी 70. इसमें मेन मैंने क्या किया, आउट ऑफ 30 वी हैव एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ दिस 10. So this was the one new thing. Now secondly, all these holding period, customer credit available from supplier, credit given to customer, raw material holding period, finished goods holding period, everything is given in terms of fixed. And last line is also given that you can assume that the year consists of 52 weeks and a month consists of 4 weeks. So यहाँ पर हमको सब weeks के basis पे कैलकुलेट करना है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, दैट इज रिलेटिंग टू WIP. Check out the second line. You can further assume that semi, so we will read first everything.
wages are paid once in a 4 weeks, that is okay. इसका मतलब outstanding wages will be equal to 4 weeks. You can assume that the material required in production introduced in beginning. मीन्स जब भी मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाता है, सो टोटल मटेरियल विल बी इशूड इन द बिगिनिंग. से फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन है, वो मशीन एक साथ अगर 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, सो एट ए टाइम whatever the total material required for manufacturing 1000 units, total material पहले इशू किया जाएगा. इसके आगे दिया है, you can assume that semi finished production is complete to the extent of 50% with respect to labor and overheads. इसका मतलब ये होता है कि जो हम सेमी फिनिश गुड्स है, जो भी हमारा WIP है, तो हमने WIP का अभी क्या सीन है, तो WIP जो भी हमारा इसमें टोटल मटेरियल इनकर हो चुका है, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड्स ओनली 50% इनकर हो चुका है. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको WIP का वैल्यूएशन अलग से करके लेना पड़ेगा. यहाँ पर प्रोडक्शन टाइम दिया हुआ है 4 weeks. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. In earlier examples, the WIP was given, that is 100% we have considered. In second example we have considered 100%, that is a material, labor and overheads, और जो भी उसका पीरियड दिया था हमने 100% कंसिडर किया. किसी एक एग्जाम्पल के अंदर 50% डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया था, सो टोटल अमाउंट के हमने 50% कंसिडर किया. किसी एक एग्जाम्पल में 60% कंप्लीशन दिया था, तो हमने उसका 60% दिया. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या दिया है, यहाँ पर ऐसे दिया है कि मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड इन फुल. इसका मतलब WIP के अंदर मटेरियल तो 100% आएगा, लेकिन ओवरहेड एंड लेबर विल बी ओनली 50%. नाउ इन सच केस वी विल हैव टू मेक अ वर्किंग नोट. सो आई विल मेक अ वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग द WIP. अभी WIP का वैल्यूएशन हम क्या करेंगे, तो उसकी कंपोनेंट वाइज करेंगे. हमने इसके पहले क्या किया था, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, जहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स सेपरेट दिए थे. जहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स सेपरेट नहीं दिए थे, तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, उसका डायरेक्टली हमने टोटल लिया कॉस्ट पर यूनिट और उसके बेसिस पे WIP किया. लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी ये तीनों कंपोनेंट को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा. सो WIP के लिए अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, लेबर भी होता है और ओवरहेड्स भी होते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, रॉ मटेरियल 100% होगा, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड्स 50% होगा. तो उसका हम देखेंगे अभी उसका क्या करना है. सो रॉ मटेरियल WIP 1,04,000 into ₹40 divided by 52 weeks into 4 weeks, that comes to ₹3,20,000. Now labor 1,04,000 units into labor cost per unit 10 divided by 52 weeks into 4. लेकिन यहाँ पर in example it is mentioned that labor and overheads degree of completion is 50%. Means raw material की 100%, but labor and overheads 50%. So इसका मैं 50% ही consider करूँगा. 1,04,000 into 10 divided by 52 into 4, इसका जो भी सम आएगा उसके 50%, and that is ₹40,000. Now overheads 1,04,000 units into, अभी overheads units पर कितना लेना है हमको, 20 कंसिडर करना है, because we have to exclude non cash cost. So हमको 20 लेना है. 1,04,000 into 20 divided by 52 weeks into 4 weeks. अभी overheads का भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना दिया है, तो 50%. So इसका भी मैं 50% ही लूंगा. So that will be ₹80,000. So WIP का वैल्यूएशन 3,20,000 plus 40,000 plus 80,000. So 4,40,000 will be the value of WIP. Just try to understand. यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर नई चीज कि WIP के अंदर जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया जाता है वो ईच कंपोनेंट का अलग है. रॉ मटेरियल का 100% है और लेबर ओवरहेड्स का 50% है. इसके लिए हमने उसको ऐसे कैलकुलेट किया. सो नाउ हियर वी हैव गॉट द स्टॉक ऑफ WIP 4,40,000, जो भी हम मेन आंसर में डायरेक्टली लिख देंगे, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट विल हैव टू कंसीडर 70. सो नाउ वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द एग्जाम. नाउ आवर मेन आंसर heading will be estimation of requirement of funds. 3 columns.
particulars, amount rupees. First, current assets. We'll start with current assets. Under the current assets, first item is stock. Stock के अंदर first item is raw material. Stock of raw material. It is given in the example that raw material in stock for 6 weeks. So raw material holding period is 6 weeks. So 1,04,000 units divided by 52 weeks. 1,04,000 units into material cost per unit. Material cost per unit is given rupees 40. Raw material 1,04,000 units into rupees 40 divided by 52 weeks into 6 weeks. So raw material stock will be rupees 4,80,000. Now WIP. Now WIP ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है. यहाँ पर हम लिख देंगे रिफर वर्किंग नोट. WIP का वैल्यूएशन हमने ऑलरेडी निकाला है 4,40,000. Now stock of finished goods 1,04,000 units into. अभी फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कौन से अमाउंट पे करना है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स. लेकिन ओवरहेड्स में से डेप्रिसिएशन हटाना है. सो टोटल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन टोटल विल बी रुपीज 70 पर यूनिट डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इनटू. नाउ फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज गिवन 8 वीक्स. 1,04,000 units into 70 divided by 52 weeks into 8 weeks. So finished goods stock will be 11,20,000. Now the total stock, raw material plus WIP plus finished goods, total stock will be 20,40,000. Now next, second is debtors. Debtors credit period is given. Credit offered to customers 10 weeks. So 1,04,000 into 70 excluding depreciation divided by 52 weeks into 10 weeks. So debtors is equal to 14 lakhs. Next, third one is cash. Check out cash balance is directly given rupees 1,80,000. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, उसके वजह से टोटल करंट एसेट्स यहीं पे हम लेंगे. सो टोटल करंट एसेट्स आर 36,20,000. So this is total current assets. A. Now part B. Part B is current liabilities. First one is sundry creditors. Now creditors, it is given in the example credit offered by supplier is 4 weeks. So यहाँ पर credit period कितना है? 4 weeks. So 1,04,000 units into creditors हम किस पे निकालते हैं? That is a credit purchases. So purchases of raw material. So raw material price per unit is rupees 40. So 1,04,000 into 40 divided by 52 weeks into 4 weeks. That comes to rupees 3,20,000. So creditors are 3,20,000. Secondly उसमें दिया हुआ है wages are paid once in a 4 weeks. Means wages का जो time lag है that is a 4 weeks का है. So outstanding wages भी हमको लेने पड़ेंगे. Outstanding wages 1,04,000 units into wages per unit rupees 10 divided by 52 weeks into 4 weeks. So that comes to rupees 80,000. So
these are the total current liabilities. Select 20,000 plus 80,000. Outer column 4 lakhs. Now net working capital. Net working capital will be 36 lakhs 20,000 minus 4 lakhs. That is comes to 32 lakhs 20,000. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर मेंशन किया है लास्ट लाइन में, प्रोवाइड फॉर कॉन्टिजेंसी ऑफ 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल. जैसे हमने पहले कुछ एग्जाम्पल में दिया, वहां पर सेफ्टी मार्जिन दिया था, तो यहाँ पर सेम थिंग दिया है लेकिन कुछ अलग वर्ड्स में दिया है. वहां पर कहा है हमने कॉन्टिजेंसी. सो अगेन हियर आई विल ऐड कॉन्टिजेंसी 10% of 32 lakhs 20,000. That will be 3 lakhs 22,000. टोटल कैपिटल अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप टोटल ले लेना. नेट वर्किंग कैपिटल 32 lakhs 20,000 प्लस 3 lakhs 22,000. सो नाउ द टोटल वर्किंग कैपिटल विल बी 35 lakhs 42,000. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35 lakhs 42,000. Actual net working capital 32 lakhs 20,000 plus 10% contingency 3 lakhs 22,000. Total requirement will be 35 lakhs 42,000. So इस example में हमने दो दे दिए. One is depreciation, that is non cash cost. उसको हमने exclude कर दिया because it was asked to calculate cash cost basis. So हमने depreciation को exclude कर दिया. और सेकेंडली न्यू थिंग हमने देखा, दैट इज अ वैल्यूएशन ऑफ WIP. अभी यहाँ पर इस एग्जांपल में WIP वैल्यूएशन का जो WIP का जो भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया था, दैट वाज 100% फॉर मटेरियल एंड फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स 50%. इसके लिए उसका सेपरेटली कंपोनेंट वाइज हमने वैल्यूएशन कर लिया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल. थैंक यू वेरी मच.